آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اس زمین پہ پہنچا تو انسان نے اپنی کی ہوئی نافرمانی پر اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، جبکہ دوسری طرف جیسے ہی شیطان اس زمین پہ پہنچا تو شیطان نے اپنی ذلت و رسوائی کی وجہ انسان کو ٹھہرا کر انسان سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا، اور پھر اسی دن سے ہی اس زمین پہ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ شیطان اس زمین پہ پہنچتے ہی اللہ سے یہ عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار، تو نے اسے ایک آدم کے لیے مجھے اپنے عرش سے نکلوا دیا، بھیانک جزائر کی طرف پھینکا دیا، میرے مقام و مرتبے سے مجھے گرا دیا، اور تو نے مجھے اپنے سیدھے رستے سے بھی بھٹکا دیا۔ اے پروردگار، میں نے لاکھوں سال تیری عبادت کی، تجھے ہزاروں سجدے کیے، کیا تو مجھے میری اس عبادت کا کوئی صلہ نہیں دے گا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اے شیطان، مانگ، کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا اے پروردگار، جس طرح سے تو نے مجھے اپنے عرش سے نکلوایا ہے، میں آدم کی اولاد کو جنت سے نکلوانا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے تو نے مجھے بھیانک جزائر کی طرف پھینکایا ہے، میں آدم کی اولاد کو جہنم کی وادیوں میں پھینکانا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے تو نے مجھے میرے مقام و مرتبے سے گرایا ہے، میں آدم کی اولاد کو تیرے دیے ہوئے اشرف المخلوقات کے مقام سے گرانا چاہتا ہوں۔ اور جس طرح سے تو نے مجھے اپنے سیدھے رستے سے بھٹکایا ہے، تو میں آدم کی اولاد کو تیرے سیدھے رستے سے بھٹکانا چاہتا ہوں۔ اے پروردگار، تو بس ایک مرتبہ مجھے آدم کی اولاد کو تیرے سیدھے رستے سے بھٹکانے کے لیے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت تو دے، اور پھر دیکھ لینا کہ تو آدم کی اولاد میں سے زیادہ تر لوگوں کو اپنا نافرمان اور میرا فرما بردار پائے گا۔ تو اللہ نے شیطان سے یہ کہا کہ اے شیطان، تجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جاتی ہے، لیکن تو آدم کی اولاد میں سے میرے خاص اور فرما بردار بندوں کو ہرگز گمراہ نہ کر پائے گا۔ تو بس ان بندوں کو گمراہ کرے گا کہ جو اپنی خواہشات کی دلدل میں ڈوب کر خود اپنی مرضی سے ہی تیرے رستے پہ چلیں گے۔ اور جان لے کہ آدم کی اولاد میں سے جو کوئی بھی تیرے رستے پہ چلے گا تو تیرے پروردگار کو قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آدم کی اولاد میں سے میرا بندہ تو صرف وہ ہوگا کہ جو میرے رستے پہ چلے گا۔ بس پھر اسی طرح شیطان نے اب اللہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت لے کر آدم کو اور آدم کی اولاد کو اللہ کے رستے سے بھٹکا کر گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ دوسری طرف آدم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ جھکا کر اور اپنے ماتھے کو اللہ کے سجدے میں بچھا کر 300 سال تک مسلسل اللہ سے رو رو کر اپنی بھول کی معافی مانگتے رہے۔ اور بس پھر 300 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر زمین پہ بھیجا کہ اے جبرائیل، جا زمین پہ، اور زمین پہ جا کر آدم کو یہ کلمات سکھا، اور پھر آدم کو یہ بتا کہ اے آدم، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو قبول کرانا چاہتا ہے تو اپنی زبان سے ان کلمات کو دہرا، یقیناً اللہ ان کلمات کے وسیلے سے تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ کلمات کا مطلب ہے جملے، اور جن جملوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنا تھا، تو ان جملوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ آدم اور حوا نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو پھر یقیناً ہم ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن ویورز، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ احادیث کی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت آدم اور حوا نے اپنی توبہ کو قبول کرانے کے لیے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، یعنی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو ان کلمات کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، جس وقت تو نے مجھ آدم میں اپنی روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولتے ہی میں نے سب سے پہلے تیرے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لکھے ہوئے دیکھا۔ میں اسی وقت سے ہی اس بات کو جان گیا تھا کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا پسند کرتا ہے، یقیناً وہ تیرا کوئی خاص محبوب ہوگا۔ میں تجھے تیرے اسی محبوب کا واسطہ دے کر اس کے وسیلے سے اپنی بھول کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔
आए परवरदिगार, अगर अभी भी तूने हमें माफ ना किया तो फिर यकीनन हम एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। व्यूवर्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से ही कबूल किया, तो इस बात का जिक्र आज से करीबन 1000 साल से भी पहले लिखी गई हदीस की किताबों में मौजूद है, जैसे कि मुस्तदरिक अल हाकिम जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 786 हदीस नंबर 4228। इसी तरह बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 186, अल बिदाया वल निहाया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 135, अल मौजम अल औसत जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 115 हदीस नंबर 6502, मजमू अल फतावा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 151 और इसी तरह अल दुरुल मंसूर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 160 में भी यही कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से ही कबूल किया था। तो इसी तरह बस फिर अब जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, तो तौबा को कबूल करने के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से यह फरमाया कि ऐ आदम, जान लो कि शैतान इस जमी पे तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को मुझ अल्लाह के रास्ते से भटका कर गुमराह करना चाहता है। लिहाजा इसी वजह से मैं तुम्हारी औलाद की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर दौर में अपने पैगंबरों को अपनी आसमानी किताबों के साथ जमीन पे भेजूंगा, और मेरे इन्हीं पैगंबरों में से मेरा आखिरी पैगंबर मेरा वो हबीब होगा कि जिसके नूर को मैंने तुम्हारी जबी में पोशीदा रखा है। आए आदम, बस जैसे ही मेरे हबीब का इस जमीन पे ज़हूर हो तो तुम्हारी औलाद पे ये वाजिब है कि वो मेरे हबीब की नबूवत का इकरार करें और उसके बताए हुए रास्ते पे चलें। और जान लो कि अगर तुम्हारी औलाद में से किसी ने भी मेरे हबीब की नबूवत का इनकार किया या फिर उसके बताए हुए रास्ते पे ना चला, तो कयामत के दिन तेरे परवरदिगार को उसे दोज़ख की आग में फेंक देने से कोई नहीं रोक पाएगा। व्यूवर्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले नहीं बल्कि उस वक्त भी नबी थे कि जब अभी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी नहीं किया गया था। और वो इस वजह से क्योंकि जामे अल तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3609 और मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 5758 के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे असहाब से ये फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, जान लो कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब अभी आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। इसके अलावा व्यूवर्स, हजरत रसूल खुदा के मकाम और मर्तबे का अंदाजा आप इस बात से भी लगा ले कि हमारी इस जमी को बनाए जाने से 2000 आसमानी साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह के मैदान में 1,23,999 पैगंबरों से अपने हबीब की नबूवत के बारे में ये वादा लिया था कि ऐ तमाम पैगंबरों, जान लो कि जब मैं तुम्हें नबूवत का मुकाम अता करके जमी पे भेजूंगा तो जमी पे जाने के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़हूर हो जाए तो फिर तुम सब पे ये वाजिब है कि तुम अपनी अपनी नबूवतों को छोड़कर मेरे हबीब का उम्मती बनकर उनकी नबूवत का इकरार करोगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलोगे। और जान लो कि अगर तुम में से किसी ने भी मेरे हबीब की नबूवत का इनकार किया तो अल्लाह के हाँ वही फासिक है, गुनहगार है और अल्लाह का नाफरमान है। व्यूवर्स, आलम अरवाह में तमाम पैगंबरों से ये बहुत ही सख्त वादा लिया गया था क्योंकि इस वादे की खिलाफ वर्जी करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फासिक कहा है। और इस वादे के जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 और 82 में कुछ यूं बयान फरमाया है। और उस वक्त को याद करो जब खुदा ने तमाम अंबिया से अहद लिया कि हम तुमको जो किताब व हिकमत दे रहे हैं, इसके बाद जब वो रसूल आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला है तो तुम सब उस पर ईमान ले आना और उसकी मदद करना। और फिर पूछा, क्या तुमने इन बातों का इकरार कर लिया और हमारे अहद को कबूल कर लिया? तो सब ने कहा कि बेशक हमने इकरार कर लिया। इरशाद हुआ कि अब तुम सब गवाह भी रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूं। उसके बाद जो इनहिराफ करेगा वो फासिकीन की मंजिल में होगा।
व्यूअर्स याद रहे ये आम इंसानों से नहीं बल्कि तमाम पैगंबरों को कहा जा रहा है कि अगर तुमने हजरत रसूल खुदा पे ईमान ना लाया तो तुम फासिक हो जाओगे। फासिक अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है गुनहगार और नाफरमान। अब यहाँ पर हजरत रसूल खुदा के मकाम और मर्तबे को पहचानने के लिए कुरान की इस आयत को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो में जो आगे बातें आपको बताई जाएंगी तो उन बातों को भी सही तरह से समझने के लिए कुरान की इस आयत यानी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से अब एक मर्तबा मैं खुद इस आयत को पढ़ूंगा ताकि आसानी से सभी को ये आयत समझ आ जाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में कुछ यूं इरशाद फरमा रहा है, और उस वक्त को याद करो जब खुदा ने तमाम अंबिया से अहद लिया। अहद का मतलब है वादा, और यहाँ भी जो कहा जा रहा है कि खुदा ने तमाम अंबिया से अहद लिया, तो हमारी सारी जमीन पे कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे ये तमाम नबी और पैगंबर कभी भी एक साथ इकट्ठे हुए हों और अल्लाह ने फिर उनसे कोई वादा लिया हो। लिहाजा ये तमाम नबी और पैगंबर आलम अरवाह के मैदान में इकट्ठे हुए थे और वहीं पर अल्लाह ने इन तमाम के तमाम नबियों और पैगंबरों से वादा लिया था। और फिर आगे ये जो कहा जा रहा है कि हम तुमको जो किताबों हिकमत दे रहे हैं, इसके बाद जब वो रसूल आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला है, तो व्यूअर्स सूरह अल माइदा की आयत नंबर 48 के मुताबिक पहले नबियों की किताबों की तस्दीक करने वाले रसूल से मुराद हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, क्योंकि आप ही वो रसूल हैं कि जिन्होंने पहले नबियों की किताबों की तस्दीक की। तस्दीक का मतलब है यानी ये बताना कि वो किताबें सही हैं या फिर बदल दी गईं। और फिर अब साथ ही ये जो कहा गया है कि तुम सब उस पर ईमान ले आना और उसकी मदद करना। व्यूअर्स ईमान लाने से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करना है, क्योंकि किसी भी नबी पे ईमान लाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो ये कि उसकी नबूवत का इकरार किया जाए। जबकि अब ये जो कहा जा रहा है कि तुम उसकी मदद करना, तो मदद करने से मुराद ये है कि अपनी जान और माल के जरिए उसका साथ देना। व्यूअर्स अब चूंकि तमाम नबियों और पैगंबरों को पहले से ही ये बता दिया गया था कि अनकरीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जमी पे ज़हूर होगा और तुम्हें ना सिर्फ उन पे ईमान लाना है बल्कि उनकी मदद भी करनी है। तो इसी वजह से हर नबी और पैगंबर अपने अपने दौर में हजरत रसूल खुदा की आमद का इंतजार करता रहता, लेकिन जब उस नबी का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने का वक्त करीब आ जाता और उसे इस बात का यकीन हो जाता कि उसके दौर में तो हजरत रसूल खुदा का ज़हूर नहीं होगा, तो वो नबी अपनी अपनी उम्मत के लोगों को इकट्ठा करता और फिर उन सब से ये फरमाता कि आए मेरी उम्मत के लोगों, जान लो कि अल्लाह ने तमाम नबियों और पैगंबरों पर अपने हबीब की नबूवत के इकरार को वाजिब करार दिया था। अगर आज अल्लाह के हबीब का इस ज़मीन पे ज़हूर होता है तो मुझ पे ये वाजिब है कि मैं उनकी नबूवत का इकरार करूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलूं और उनका उम्मती बनकर उनकी उम्मत के लोगों में शामिल हो जाऊं। लेकिन आए मेरी उम्मत के लोगों, अब मेरा वक्त आखिर करीब है। चूंकि अल्लाह ने खुद मुझे अपने हबीब का उम्मती बनने का हुक्म दिया था, तो मेरे इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तुम सब पे भी ये वाजिब है कि जब भी अल्लाह के हबीब का इस ज़मीन पे ज़हूर हो तो तुम उनकी नबूवत का इकरार करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना और उनका उम्मती बनकर उनकी उम्मत के लोगों में शामिल हो जाना। और व्यूवर्स बस फिर यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी और पैगंबर अपने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मत के लोगों को हजरत रसूल खुदा की आमद के बारे में मुख्तलिफ पेशनगोइयां करके बताता रहा। और इसी वजह से ही आज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, पारसीज्म, ईसाईयत और यहूदियत की मजहबी किताबों में 140 से भी ज्यादा जगहों पर हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद के बारे में जिक्र मौजूद है, जो कि आज की ही इस वीडियो में यानी मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह बस फिर अब जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत रसूल खुदा के वसीले से अपनी तौबा को फौरन कबूल हो जाते हुए देखा, तो इस पर आपको हजरत रसूल खुदा के मकाम और मर्तबे के बारे में इल्म हुआ और फिर आप अपनी औलाद को भी ये बताते रहे कि आए औलाद आदम, याद रखना कि जब भी तुम अल्लाह की नाफरमानी कर बैठो तो तुम अल्लाह के हबीब के वसीले से अपनी गलतियों, अपनी खताओं और अपने गुनाहों की माफी मांगा करना, जिस तरह अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले
पहले से मुझे माफ फरमाया है, यकीनन अल्लाह तुम्हें भी माफ फरमाएगा। और बस फिर इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी अपनी औलाद को हजरत रसूल खुदा के मकाम और मर्तबे के बारे में बताते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अपने दौर में अपनी उम्मत के लोगों को हजरत रसूल खुदा की आमद के बारे में बताते रहे। अल्लाह ने आज से करीबन 10,000 साल या फिर 10,000 साल से भी ज्यादा साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर अपनी कुछ आसमानी किताबों को नाजिल किया और फिर अल्लाह ने उन्हीं किताबों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में बहुत सी पेशनगोइयों और निशानियों के बारे में भी बताया। व्यूअर्स, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे जो किताबें नाजिल की थी, तो अगर आज हम उन किताबों को तलाश करने के लिए थोड़ी सी तहकीक करें तो तहकीक करने के बाद हमें ये मालूम होता है और बहुत ज्यादा इम्कानात यानी चांसेस भी यही पैदा होते हैं कि वो किताबें मौजूदा दौर में हिंदू मजहब के लोगों की ही मजहबी किताबें हैं कि जो किताबें अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम या फिर उनके आसपास के पैगंबरों पर नाजिल की थी। अब ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान में नाम के साथ तो सिर्फ 4 आसमानी किताबें यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान का जिक्र किया गया है, लेकिन कुरान में ही सूरह अर्राद की आयत नंबर 38 और सूरह फातिर की आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने हर जमाने में हर कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए किताब भेजी है। इसी तरह हम ये बात भी जानते हैं कि कुरान में नाम के साथ तो सिर्फ 25 नबियों का जिक्र किया गया है, लेकिन कुरान में ही सूरह फातिर की आयत नंबर 24, सूरह अर्राद की आयत नंबर 7, सूरह यूनुस की आयत नंबर 47 और सूरह अन-नहल की आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, और बेशक कोई भी कौम ऐसी नहीं गुजरी कि जिसकी तरफ हमने अपने नबियों और पैगंबरों को ना भेजा हो। अब व्यूअर्स, कुरान से हम ये बात तो जान गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कौम की तरफ अपनी आसमानी किताब और कम अज कम 25 नबियों को तो जरूर भेजा है, लेकिन हम मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 5737 के मुताबिक ये बात भी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आए लोगों, जान लो कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबरों को इस जमीन पे भेजा है। इसके अलावा यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि हम इंसानों की जिंदगी की इब्तिदा हिंदुस्तान के आसपास के इलाकों से ही हुई थी। अब व्यूवर्स, इन तमाम आयात और अहादीस को सामने रखते हुए बहुत ज्यादा इम्कानात यानी चांसेस भी यही पैदा होते हैं कि आज से हजारों साल पहले जो लोग हिंदुस्तान में रहते थे तो उन लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुछ नबियों और पैगंबरों को सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ जरूर भेजा होगा। और ये भी हो सकता है कि हिंदू मजहब की जो मजहबी किताबें हैं तो वो किताबें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उन्हीं नबियों और पैगंबरों पर नाजिल की हों कि जो नबी और पैगंबर उस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ भेजे गए थे। व्यूवर्स, अब मैं आपको ये सब बातें और हिंदू मजहब की मजहबी किताबों के बारे में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि हिंदुओं की 7 मजहबी किताबों में 70 से भी ज्यादा जगहों पर हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बयान किया गया है। हिंदुओं की 5000 साल से भी पुरानी जिन मजहबी किताबों में हजरत रसूल खुदा की आमद के बारे में पेशनगोइयां बयान की गई हैं, तो उन किताबों के नाम भविष्य पुराना, भगवत पुराना, कल्कि पुराना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। भविष्य पुराना के करीबन 25 श्लोकाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बयान किया गया है, जैसे कि भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से 23। इसी तरह भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8 और इन्हीं श्लोकाज के आगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 10 से 27 में ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है, बल्कि यहाँ पर आपका जिक्र मोहम्मद के नाम से बयान किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ देखकर पढ़ सकते हैं। आयोने स्वरो मता प्राप्तवान दैत्य वर्धना मोहम्मद इति ख्यातः पिशाच कर्त तत्परः। एतस्मिन् अंतरे मलेच आचार्येण समन्विताः मोहम्मद
इति ख्यातः शिष्यशाकः समन्विताः। इसी तरह हिंदू मजहब की एक और मजहबी किताब भगवत पुराण के 4 श्लोकास में हजरत रसूल खुदा का जिक्र मौजूद है, जैसे कि भगवत पुराण खंड नंबर 1 अध्याय नंबर 3 श्लोका नंबर 25 और भगवत पुराण खंड नंबर 12 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 18, 19 और 20। बस फिर इसी तरह हिंदू मजहबी किताब कल्कि पुराण में 5 जगहों पर कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 4, कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 5, कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 7, कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 11 और कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 15। कल्कि पुराण के अलावा ऋग्वेद में 11 जगहों पर ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 53 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 182 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 हिम नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 हिम नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 हिम नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 6 मंत्र नंबर 10, ऋग्वेद किताब नंबर 10 हिम नंबर 64 मंत्र नंबर 3 और ऋग्वेद किताब नंबर 10 हिम नंबर 182 मंत्र नंबर 2। जबकि सामवेद में करीबन 3 जगहों पर सामवेद पूर्वचिक मंत्र नंबर 64, सामवेद पूर्वचिक मंत्र नंबर 152 और सामवेद उत्तरचिक मंत्र नंबर 1500। यजुर्वेद में 8 जगहों पर यजुर्वेद अध्याय नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद अध्याय नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद अध्याय नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद अध्याय नंबर 21 मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद अध्याय नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद अध्याय नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 28 मंत्र नंबर 42 और यजुर्वेद अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18। यजुर्वेद के अलावा अथर्ववेद के 18 मंत्राज में अथर्ववेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 5 मंत्र नंबर 16, अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 मंत्र नंबर 6, अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 मंत्र नंबर 7, अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 मंत्र नंबर 14, अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इन तमाम के तमाम मंत्राज और किताबों में अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ साफ और वाज़े तौर पर जिक्र बयान किया गया है। व्यूअर्स, हिंदुइज्म की इन 7 मजहबी किताबों से मैंने अभी आपको 70 से भी ज्यादा हवाले बताए हैं और इनमें से कोई एक भी हवाला ऐसा नहीं है कि जो हवाला मैंने खुद ना पढ़ा हो। इन हवालों में बयान करदा तमाम पेशनगोइयों को वक्त की कमी होने की वजह से मैं इस एक वीडियो में खुद बोलकर आपको नहीं बता सका, लेकिन मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए इन तमाम की तमाम पेशनगोइयों को अपनी ऑफिशियल ब्लॉग वेबसाइट पर लिख दिया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए आप उन तमाम की तमाम पेशनगोइयों को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी तरह अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया है कि कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों और पैगंबरों को हजरत रसूल खुदा की नबूवत के बारे में आलम अरवाह के मैदान में ही बता दिया था, यानी हजरत रसूल खुदा आलम अरवाह के मैदान में भी मौजूद थे। तो व्यूवर्स, बिल्कुल इसी बात को हिंदुओं की सबसे बड़ी मजहबी किताब ऋग्वेद में भी कुछ इस तरह से बयान किया गया है। अग्नि का पहला जन्म आलम बाला में हुआ। आलम का मतलब है दुनिया और बाला का मतलब है बुलंदी, ऊंचाई, यानी आसमानों में। आलम बाला यानी आलम अरवाह में। इनका दूसरा जन्म हम इंसानों में होगा, तब वो जात वेद कहलाएंगे। जात का मतलब है पैदाइशी और वेद का मतलब है आलिम, यानी पैदाइशी आलम। यहाँ पर पैदाइशी आलम से मुराद ये है कि वो जो इंसानों से नहीं बल्कि सीधा खुदा से इल्म हासिल करे। और हम जानते हैं कि हजरत रसूल खुदा ने अपनी सारी जिंदगी किसी भी इंसान से कोई इल्म हासिल नहीं किया, बल्कि आप वही के जरिए सीधा अल्लाह से इल्म हासिल करते थे। और अब यहाँ पर हम मुसलमानों के लिए भी गौर व फिक्र करने वाली बात यह है, क्योंकि हम मुसलमान भी दुनिया की ख्वाहिशात की दलदल में डूबकर इस बात को भुला चुके हैं। और वो बात यह है कि ऋग्वेद में यहाँ पर 2 जन्म यानी 2 जिंदगियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें से पहली जिंदगी आलम अरवाह की जिंदगी है और दूसरी जिंदगी इस ज़मीन की जिंदगी है। और व्यूवर्स, बिल्कुल इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कुरान में सूरह गाफिर की आयत नंबर 11 में कुछ यूं बयान फरमाता है,
اور دوزخی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے اس دوزخ کی آگ سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ ویورز، قرآن کی اس آیت میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی پہلی موت ہماری عالم ارواح میں ہوئی تھی اور پھر اس موت کے بعد ہمیں اس زمین پہ بھیج دیا گیا، اور اب اس زمین پہ ہماری دوسری موت ہوگی اور اس موت کے بعد ہمیں حساب و کتاب کے لیے عالم آخرہ میں بھیج دیا جائے گا۔ یاد رہے، موت یا پھر انتقال کر جانے کا مطلب ختم ہو جانا نہیں، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ہندوؤں کی ان مذہبی کتابوں کو پڑھیں گے تو انہیں پڑھتے وقت یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت رسول خدا کو ہندوؤں کی انہی مذہبی کتابوں میں کئی جگہوں پر احمد اور احمد ہی کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، جو کہ حضرت رسول خدا کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے، اور آپ کے اس نام کو رگ وید کتاب نمبر 8 ہم نمبر 6 منتر نمبر 10، اتھرو وید کتاب نمبر 8 ہم نمبر 5 منتر نمبر 16، یجروید ادھیائے نمبر 31 منتر نمبر 18، سام وید پوروچک منتر نمبر 152 اور سام وید اترچک منتر نمبر 1500 میں کچھ اس طرح سے پکارا گیا ہے کہ احمدی پتو پریمیدھام رتسیا جگرہا اہم سوریو ایوا جنی۔ خیر ویورز، یہاں پر میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں اب اس سارے موضوع کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، بلکہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہو چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ ویورز، نوح سیریز میں آپ کے انہی تمام سوالات کے جوابات کو آسان سے آسان انداز میں بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے دماغ میں ابھی اس سارے موضوع کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اپنے اس سوال کو ابھی اسی وقت نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ تو اسی طرح بس پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی ساری زندگی قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے مطابق اپنی امت کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لوگوں نے بتوں کی اور بھی زیادہ پوجا کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح شیطان نے آپ کی امت کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکا کر گمراہ کر دیا۔ تو بس پھر اب اللہ نے سرزمین ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے بعد سرزمین مصر اور مصر کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی آج سے قریباً 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہی اپنی امت کے لوگوں کو حضرت رسول خدا کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی کتاب تورات کو نازل کیا، اور پھر اللہ نے تورات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کر کے بتایا۔ اب ویورز، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، لوگ تو آپ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پائیں گے۔ تو ویورز، اب اگر ہم موجودہ دور میں تورات کو پڑھتے ہیں جو کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے، تو تورات میں کم از کم 13 جگہوں پر حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ انگریزی زبان کی تورات کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 15، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، 19، 20، 21، 22، بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 1، 2، 3، 4، بک آف ہگایا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 7، بک آف میلکائی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16۔ اسی طرح اردو زبان کی تورات کے مطابق استثنا کی کتاب باب نمبر 18 جملہ نمبر 15، استثنا کی کتاب باب نمبر 18 جملہ نمبر 18، 19، 20، 21، 22، یسایہ کی کتاب باب نمبر 42 جملہ نمبر 1، 2، 3، 4، حجی کی کتاب باب نمبر 2 جملہ نمبر 7، ملاکی کی کتاب باب نمبر 3 جملہ نمبر 1، اور غزل الغزلات کی کتاب باب نمبر 5 جملہ نمبر 16 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صاف صاف ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ویورز، اب جیسا کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے مطابق اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے میدان میں تمام نبیوں اور پیغمبروں سے حضرت رسول خدا کی نبوت کے بارے میں عہد لیا تھا،
عہد کا مطلب ہے وعدہ، تو اس عہد کی وجہ سے ہی حضرت رسول خدا کو عہد کا رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رسول کے جس کے بارے میں تمام نبیوں اور پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ رسول ضرور آئے گا اور تمہیں اس رسول پہ ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت رسول خدا کو عہد کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور ویورز بالکل اسی بات کو انگریزی تورات کے مطابق بک آف ملکی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1، جبکہ اردو زبان کی تورات کے مطابق ملاکی کی کتاب باب نمبر 3 جملہ نمبر 1 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے راہ کو درست کرے گا، اور جس خداوند کے تم طالب ہو ناگہاں اپنے ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا، یہ رب الافواج فرماتا ہے۔ اسی طرح ویورز اب ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ تورات میں ہی سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اردو میں غزل الغزلات کی کتاب باب نمبر 5 جملہ نمبر 16 میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر آپ کا ذکر محمد کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہیبرو یعنی عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی، تو اگر آج ہم تورات کی ہی اس آیت کو تورات کی ہی اصل زبان یعنی ہیبرو زبان میں پڑھتے ہیں تو تورات کی یہ آیت کچھ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے: ہکو ممتقم وخلو محمدم زیدودی وزرعی بنوکی یروشلائم۔ تورات کی اس آیت میں آپ یہ لفظ یعنی محمد کو سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ محمد نام محمد کے آگے یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ لفظ ہیبرو زبان میں کسی بھی نام کو احترام سے پکارنے کے لیے اس نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں کسی بھی نام کو احترام سے پکارنے کے لیے حضرت لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی حضرت محمد، جبکہ ہیبرو زبان میں کسی کے بھی نام کو احترام سے پکارنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی محمد اور ویورز اگر آپ کو ابھی بھی میری زبان سے نام محمد کو تورات کی اس آیت میں سن کر یقین نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو تورات کی یہی آیت ایک یہودی عالم کی زبان سے بھی سنوا دیتا ہوں: حکو ممتقیم وخلو محمدیم زیدودی وزرعی بنوک یروشلائم۔ اسی طرح بس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو شیطان کے رستے سے بچانے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلانے کے لیے ایک کے بعد ایک ایک کر کے 400 مختلف نبیوں کو آپ کی امت کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ لیکن قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کے مطابق آپ کی امت کے لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ایک ایک کر کے اللہ کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور پھر اسی طرح شیطان نے آپ کی امت کے لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے بھٹکا کر گمراہ کر دیا۔ بس پھر اسی طرح اب اللہ نے سرزمین مصر میں رہنے والے لوگوں کے بعد آج سے قریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سرزمین فلسطین کی طرف بھیجا، اور اللہ نے آپ پر اپنی کتاب انجیل کو نازل کیا، اور پھر اللہ نے انجیل میں بھی آپ کو اپنے حبیب حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ کی آمد کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کر کے بتایا۔ ویورز اب اگر ہم موجودہ دور میں عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل یعنی بائبل کے نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کم از کم 7 جگہوں پر، جیسے کہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 8، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 13 اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 14 کی ان تمام کی تمام جگہوں پر اللہ کے آخری رسول حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صاف صاف اور واضح طور پر ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر میں آپ کو عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل میں حضرت رسول خدا کی آمد کے بارے میں کچھ پیشن گوئیوں کے بارے میں بتاؤں تو انگریزی بائبل کے مطابق گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 اور اردو زبان کی انجیل کے مطابق یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 جملہ نمبر 16 میں یہ کہا گیا ہے: اور میں باپ سے درخواست کروں گا
व्यूअर्स यहाँ पर बाप से मुराद खुदा है, यानी और मैं खुदा से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें एक दूसरा मददगार भेजेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि इंजील की इन आयात में ये जो बातें बयान की जा रही हैं, तो ये सब बातें हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम अपने असहाब से उस वक्त बयान कर रहे थे कि जब आप इस जमीन से आसमान की तरफ उठाए जाने वाले थे। इसी तरह फिर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 यानी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 15 जुमला नंबर 26 में ये कहा गया है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप यानी खुदा की तरफ से भेजूंगा तो वो रूहे हक है, जो खुदा की तरफ से जाहिर होगा तो वो मेरी ईसा इब्ने मरियम की गवाही देगा। और हम जानते हैं कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के जमीन से आसमान पर उठाए जाने के बाद अब तक का वो वाहिद मजहब सिर्फ इस्लाम ही है कि जिस मजहब के मुकद्दस किताब कुरान में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 25 जगहों पर हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र बयान किया गया है और इस बात की गवाही दी गई है कि आप अल्लाह के एक अजीम रसूल थे। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 यानी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 16 जुमला नंबर 7 में ये कहा गया है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो मैं उस मददगार को तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसी तरह फिर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 एंड 13 यानी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 16 जुमला नंबर 12 और 13 में ये कहा गया है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन अब तुम उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन जब वो रूहे हक यानी वो मददगार आएगा तो वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो खुदा से सुनेगा वही कहेगा, और वो मददगार तुम्हें मुस्तकबिल की खबरें देगा। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मददगार कौन है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये बात याद रहे कि ईसाई मजहबी किताब इंजील को ग्रीक यानी यूनानी जुबान में नाजिल किया गया था। तो अगर आज हम इंजील की इन आयात को इंजील की ही असल जुबान यानी यूनानी जुबान में पढ़ते हैं तो वहां पर इस लफ्ज मददगार की जगह पर लफ्ज पैराक्लीट इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम बिब्लिकल ग्रीक डिक्शनरी में थोड़ी सी तहकीक करें तो हमें यह मालूम होता है कि सही लफ्ज पैराक्लीट नहीं बल्कि पैराक्लिटस है, और ये लफ्ज पैराक्लिटस यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो। और अगर हम वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो को अरबी जुबान में तब्दील करें तो लफ्ज बनता है अहमद, और अहमद का मतलब है वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो। और व्यूवर्स बिल्कुल इसी बात को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने कुरान में सूरे असफ की आयत नंबर 6 में कुछ यूं बयान फरमाता है, और वो वक्त याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि आए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ जो तौरात की तस्दीक करने वाला है, और मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा, और उसका नाम अहमद होगा। इसी तरह व्यूवर्स हजरत रसूल खुदा का और भी बहुत से मज़ाहिब की मजहबी किताबों में जिक्र बयान किया गया है। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि कुरान में नाम के साथ तो सिर्फ 25 नबियों का ही जिक्र किया गया है, लेकिन कुरान में ही सूरे अल निसा की आयत नंबर 164 और सूरे गाफिर की आयत नंबर 78 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र तो हमने आपसे बयान कर दिया है, जबकि बहुत सौ का जिक्र हमने आपसे बयान नहीं किया। और जैसा कि मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि कुरान में नाम के साथ तो सिर्फ 4 आसमानी किताबें यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान का ही जिक्र किया गया है, लेकिन कुरान में ही सूरे अर्राद की आयत नंबर 38 और सूरे फातिर की आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने हर जमाने में हर कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए किताब भेजी है। व्यूवर्स अब कुरान की ये आयात मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हिंदू मजहब, ईसाई मजहब और यहूदी मजहब के अलावा पारसी मजहब यानी वो लोग जो आग की पूजा करते हैं और बुद्धिज्म, इन दोनों मज़ाहिब की मजहबी किताबों में भी हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही ज्यादा जिक्र बयान किया गया है। पारसी मजहब जो कि आज से करीबन 4000 साल पुराना मजहब है, तो इस मजहब की भी 2 मजहबी किताबों में कम अज कम
38 जगहों पर हजरत रसूल खुदा के बारे में जिक्र बयान किया गया है, जैसे कि ज़िंद अवस्था फरवरदीन यज़्द चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 17, ज़िंद अवस्था यम यज़्द चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 95, ज़िंद अवस्था फरवरदीन यज़्द चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 129, ज़िंद अवस्था फरवरदीन यज़्द चैप्टर नंबर 63 वर्स नंबर 70, 71, 72 और इसी तरह ज़िंद अवस्था बुंदहिश्न चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 6 to 27 में भी हजरत रसूल खुदा की आमद के बारे में साफ साफ और वाज़े तौर पर पेशन गोइयां बयान की गई हैं। ज़िंद अवस्था के अलावा पारसी मजहब की ही एक और दूसरी मजहबी किताब जिसका नाम दसातीर है, तो इस किताब में भी 8 जगहों पर जैसे कि एपिस्टल ऑफ ससन 1 वर्स नंबर 54 to 61 में भी हजरत रसूल खुदा आखिरी नबी और खत्मुन नबीयीन होंगे, इस बारे में साफ साफ और वाज़े तौर पर जिक्र बयान किया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ देखकर पढ़ सकते हैं। इसी तरह बुद्धिज्म, जो कि आज से करीबन 2500 साल पुराना मजहब है, तो इस मजहब की भी कई मजहबी किताबों में जैसे कि चक्रवर्ती सेहनद सुता D376, महापरिनिर्वाण सुता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 32, महापरिनिर्वाण सुता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 36, धम्मापद मत्या सुता 151 और बुद्धिज्म की इन्हीं मजहबी किताबों के अंग्रेजी हवालों के मुताबिक सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम नंबर 35 पेज नंबर 225, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम नंबर 11 पेज नंबर 36, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम नंबर 11 पेज नंबर 97, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 214, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 218, इन तमाम की तमाम सेक्रेड बुक्स, गॉस्पेल और सुताज में भी वाज़े तौर पर अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल साफ साफ और वाज़े तौर पर जिक्र बयान किया गया है, बिल्कुल साफ साफ और वाज़े तौर पर जिक्र बयान किया गया है। व्यूवर्स, मैंने अभी आपको हिंदुइज्म की 7 मजहबी किताबों से 75, यहूदियों की मजहबी किताब तौरात से 13, ईसाइयों की मजहबी किताब इंजील से 7, पारसीज़म की 2 मजहबी किताबों से 36 और बुद्धिज्म की कई मजहबी किताबों से 10 हवाले बताए हैं। और इनमें से कोई एक भी हवाला ऐसा नहीं है कि जो हवाला मैंने खुद मुकम्मल तौर पर तहकीक करके ना पढ़ा हो। और अगर इन सब हवालों को इकट्ठा किया जाए तो ये सब 140 से भी ज्यादा हवाले बनते हैं। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि हजरत रसूल खुदा का जिक्र अकेले हिंदुइज्म की ही किताबों में 140 से भी ज्यादा जगहों पर मौजूद है, और वक्त की कमी होने की वजह से मैं इन तमाम हवालों को इस एक वीडियो में ही खुद अपनी जुबान से बोलकर आपको नहीं बता सका। लेकिन मैंने कई महीनों की तहकीक, रिसर्च और मेहनत के बाद आपकी आसानी के लिए, ताकि आप सब भी आसानी से इन हवालों को पढ़ सकें, तो मैंने इन तमाम के तमाम 140 से भी ज्यादा हवालों को अपनी ऑफिशियल ब्लॉग वेबसाइट पर आपके लिए पहले से ही लिख कर रख दिया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए आप उन तमाम के तमाम हवालों को आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह बस फिर हर नबी और पैगंबर अपने अपने दौर में अपनी अपनी जुबान के लिहाज से हजरत रसूल खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकार कर आपका जिक्र बयान करता रहा, जैसे कि कोई आपको सोशंत, कोई नाराशंस, कोई कौरमा, कोई अस्तवत एरेता, कोई रेब, कोई पैराक्लिटस, कोई मैत्री, कोई महर्षि, कोई मामाहे, कोई मोहम्मद, तो कोई मोहम्मद के नाम से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर अपनी अपनी उम्मत के लोगों को आपकी आमद के बारे में पेशन गोइयां करके बताता रहा। और वो ये सब पेशन गोइयां इस वजह से करके बताता रहा ताकि जब भी अल्लाह के आखिरी नबी का इस ज़मीन पे ज़हूर हो तो उसकी उम्मत के लोग उसकी बताई हुई इन्हीं पेशन गोइयों और निशानियों को देखते हुए अल्लाह के आखिरी नबी की आसानी से पहचान कर सकें, उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें और उनकी नबूवत का इकरार कर सकें। व्यूवर्स, अब यहाँ पर वैसे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, पारसीज़म, ईसाईयत और यहूदियत की मजहबी किताबों में अगर हजरत रसूल खुदा का जिक्र वाकई में मौजूद है तो फिर ये लोग हजरत रसूल खुदा को क्यों नहीं मानते और उन पे ईमान क्यों नहीं लाते?
تو ویورز، بدقسمتی سے جس طرح ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی مذہبی کتاب قرآن کو نہیں پڑھتی اور نہ ہی قرآن کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتی ہے، تو بالکل اسی طرح ان مذاہب کے لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد نہ ہی اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھتی ہے، نہ ہی ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتی ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی غور و فکر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سب لوگ اپنی مذہبی کتابوں میں اللہ کے آخری رسول حضرت رسول خدا کے بارے میں سب کچھ لکھا ہونے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اسی طرح بس پھر اللہ رب العزت تو اپنی طرف سے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی کتابوں، اپنے نبیوں اور اپنے پیغمبروں کو زمین کے مختلف علاقوں کی طرف بھیجتا رہا۔ لیکن جیسے ہی یہ سب نبی اور پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے، تو ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد شیطان ہر دور میں کبھی شداد، کبھی نمرود، تو کبھی فرعون جیسے بدبخت کافروں کے ذریعے ان پیغمبروں کی امتوں کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیتا، اور اسی طرح یہ لوگ بھی شیطان کے جال میں پھنس کر اور اپنی خواہشات کی دلدل میں ڈوب کر اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے، ان پہ نازل کردہ کتابوں کو ہی بدل دیتے، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کا انکار اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے کا اقرار کر لیتے، اور پھر یوں ہی شیطان نے آدم کی اولاد سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے ان تمام کی تمام امتوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیا، اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیا، ان تمام کی تمام